Hello everyone, welcome to MBA Karo. MHCT is just a couple of days away, and most of the aspirants are worried about their stuck mock scores. Right? कोई कहता है कि मेरे 110 से ऊपर नहीं आ रहे, मेरे 120 से ऊपर नहीं आ रहे, मेरे 100 से ऊपर नहीं आ रहे, मेरे 80 से ऊपर नहीं जा रहे. ओके एग्जाम में कैसे आएंगे. राइट, दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ मोस्ट ऑफ यू राइट नाउ. So how to raise this mock score in the examination, I'm going to discuss today that why you might be stuck at some particular score and not able to scale it up. ठीक है, आप एक लेवल तक कर लेते हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि इसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहा है. So what are the factors that are stopping you? How can you improve your scores? And is it possible? Yes, it is definitely possible. You can increase your mock scores in the actual examination by a good margin, and there are certain factors that are responsible for it. So in this video I'm going to discuss all those things, so please do like this video and watch this video till end. If you are new to my channel, please do subscribe to my channel and also join my Telegram group. Now first thing that you must be aware of is this: most of these mock tests are more difficult than the actual examination. Right, no matter they will say that okay this is as per CET level, पर थोड़ा वो difficulty level रखते हैं. The reason is they want that you do not become overconfident for the examination. So just to maintain that the students are not confident, they always aspire to do better in the examination, they keep the difficulty level slightly higher than the actual exam. So अगर आपके मॉक स्कोर कम हैं तो डू नॉट थिंक कि आपका एग्जाम में भी इतना आएगा, आपका उससे बेटर आ सकता है. ओके, नाउ वन थिंग दैट आई वुड कॉल इट ईडीएम, आप इसको स्ट्रैटेजी का नाम देना चाहो या जो देना चाहो, ठीक है. दिस इज अ साइकोलॉजिकल हैक हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, स्पेशली लाइक CET wherein there are plenty of questions to do and there is limited time, right? 150 minutes, 200 questions. तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 200 क्वेश्चंस पूरे कर पाना. ओके, लाइक इफ इट्स अ नॉर्मल पेपर, अगर बहुत ईजी आ गया तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट अगर नॉर्मल पेपर है तो पूरे आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो. सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी हाउ टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स, जेन्युइन अटेम्प्ट्स, ओके, सो दैट यू कैन डू द बेस्ट इन द एग्जामिनेशन. सो आई कॉल इट EDM, आप इसको स्ट्रैटेजी बोलो, कुछ भी बोलो. द थिंग इज देर इज साइकोलॉजी बिहाइंड इट. ठीक है, आप जैसे अगर क्रिकेट देखते हो, वनडे क्रिकेट स्पेशली देखते हो, तो आप देखते हो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ खेलते हैं. ठीक है, शुरू के 10-15 ओवर तेज़ खेलते हैं, फिर मिडिल ओवर में आपको गेम जमाना होता है, आराम से खेलते हैं, और लास्ट के ओवर्स में फिर से तेज़ खेलते हैं. राइट, लास्ट में फिनिशिंग टच देना होता है तो स्पीड बढ़ा देते हैं. सो दैट इज़ हाउ ODI इज प्लेड. ओके, मिडिल ओवर्स में दे कीप द विकेट्स एंड लाइक कीप टिकिंग द स्कोर बोर्ड, एंड लेटर ऑन दे जस्ट ब्लास्ट लाइक एनीथिंग. ठीक है, तो एग्जाम में भी कुछ इस तरह से खेलना है. लंबा गेम है, लाइक 2.5 आवर्स का है. सो फर्स्ट इज यू हैव टू गेट अ फ्लाइंग स्टार्ट. द रीजन इज दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस. राइट, तो क्रिकेट में तो क्या होता है, आपके सामने एक बॉलर आ रहा है, बॉलिंग करा रहा है, तो यू हैव टू बिल्ड लाइक the opponent is your team. Okay, so you have to build pressure on them, but here the opponent is not any team, it is the examination. And I mean that has the same force. You cannot put pressure on that examination, but the examination can put pressure on you. Okay, so in the first few minutes just go with the easy questions. Okay, and I'm sure that if you have practiced well, if you have understood yourself well, मॉक का एनालिसिस अच्छे से किया है, तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली पता होगी कि ईजी टॉपिक्स कौन से हैं आपके लिए. ठीक है, मैं इस पर एक वीडियोस भी बना दूंगा. तो जनरली परसीव्ड ईजी टॉपिक्स कौन से होते हैं एग्जाम में, और इट माइट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Like for example, I might say that DI is easy for me, okay, but some might say that DI is very difficult for them. So कुछ topics में ऐसा होगा, but कुछ topics genuinely easy होते हैं, like number series, okay, or maybe like any inequalities, right, coding, decoding, okay, and then you might have grammar based questions. So those are generally easy ones. So in the first लाइक 45-50 या 60 मिनट्स जितने भी आपको इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं पेपर में, वो आप ब्राउज करो. सो बेसिकली इन द फर्स्ट 50 मिनट्स यू डू इजी क्वेश्चंस. ठीक है, इजी क्वेश्चंस में क्या होगा कि आप जो बेसिकली एक मतलब एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, जितना 50 मिनट में स्कोर कर लोगे ना, तो वो
वो एक बेस स्कोर बन जाएगा। उसके बियॉन्ड मे बी आप इन द नेक्स्ट 100 मिनट्स यू माइट बी एबल टू डबल इट, राइट। और अप्रॉक्सीमेट आप 50 मिनट्स में सपोज 60 से 70 क्वेश्चंस बना ले रहे हो, इजी क्वेश्चंस बन जाते हैं। बिलीव मी देयर आर क्वेश्चंस दैट कैन बी डन विद इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। 1 मिनट के अंदर होने वाले काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप 60 से 70 बना ले रहे हो तो मे बी यू कैन गो अप टू 140, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे तो टाइम जा सकता है। सो मे बी 120 टू 140, सो यू कैन डबल दिस, अप्रॉक्सीमेटली डबल दिस। 50 मिनट्स में आपने 1/3 टाइम में आपने लाइक हाफ मार्क्स सिक्योर कर लेने हैं। सो द थिंग इज गिव इनिशियल 45-50 मिनट्स जस्ट टू फिगर आउट द ईजिएस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ थोड़े लेंदी होंगे और कुछ आपके मॉडरेट होंगे, राइट। सो लेंदी अगर मैं कहूँ, जैसे आपके डिफ़िकल्ट में अगर मैं क्लासीफाई करूँ आरसीज, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आरसी में कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे लाइक वो कैप बेस्ड, or it might be like referring to one particular part of the paragraph, right, like that. Then other questions of RC, then maybe DI, right. Then you have puzzles. कुछ पजल्स इजी भी हो सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, वो आपको देख के पता चल जाएगा। अगर मान लो देर आर जस्ट 8 people सिटिंग इन अ रो विद नो अदर पैरामीटर, दैट इज एन ईजी पजल। बट इफ 8 people आर सिटिंग फेसिंग बोथ डायरेक्शंस, सम फेसिंग नॉर्थ, सम फेसिंग साउथ, एंड दे हैव सम अदर पैरामीटर एसोसिएटेड विद देम, देन इट इज अ डिफिकल्ट पजल। सो RCs, DI, some of the puzzles, okay, so these could be classified as the difficult ones. So ट्राई टू अटेम्प्ट देम एंड दीज आर यूजुअली इन ग्रुप्स, ठीक है। और इसके अलावा CR क्रिटिकल रीजनिंग भी डिफिकल्ट होती है क्योंकि टाइम लग के आपको एक क्वेश्चन करने को मिलता है, राइट। सो दीज आर सम क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू बी लेंदी टाइम टेकिंग वंस। सो गिव देम अनदर लाइक लेट अस से 65 to 70 minutes. So by the end of 2 hours, right, you should be done with easy and difficult things. ओके 2 hours से पहले मे बी 1 hour 50 minutes और 1 hour 55 minutes. एंड मीडियम क्वेश्चंस जैसे आपके जो क्वांट के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, राइट, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाइक ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, जो आप कर तो सकते हो, ठीक है। ये कौन सा है, ये बहुत ही आसान है, मतलब जो देखा सीधे हो गया, देखा हो गया, नंबर सीरीज जल्दी स्पॉट हो गई, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से आपको आती है, आपको परसेंटेज आता है, आपको प्रॉफिट लॉस आता है, आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है, बट आपको पता है कि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। सो दोज आर मीडियम क्वेश्चंस, राइट। अब सी इट कैन, द डेफिनेशन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ओके, लाइक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, पैरा जंबल्स, राइट। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच यू माइट बी एबल टू डू, बट यू थिंक दैट इट माइट टेक टाइम। सो इसमें आप थोड़ा सा करीब अराउंड 20-25 मिनट्स दो, राइट। सो अटेम्प्ट दोज इन द एंड। अब क्या होता है, अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं, व्हाई डज दिस वर्क। सो व्हेन यू स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस, दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना, पेपर स्टार्टिंग में ही खराब हो गया, यूजुअली यू सी ना इन क्रिकेट एज आई कंपेयर टू, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में विकेट गिर जाते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, राइट। सो if you start with easy questions, that gives you confidence, okay, you are doing something good. Now if you do medium questions later, right, अगर मैं कहूँ कि EMD कर दें इसे, तो क्या होगा लास्ट में जो आपका जो लास्ट के 30 मिनट्स होते हैं ना, उस पर आप पे इमेंस प्रेशर रहेगा, ठीक है। लास्ट के 30 मिनट्स में बहुत प्रेशर आता है कि अरे कैसे होगा, राइट। तो ऐसे में ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, चीज़ें गलत होती है, एक्यूरेसी नहीं बनती, ओके। सो देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, ओके, दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल हैक। सी देयर आर पीपल हु go with practice but are unable to perform in the examination. The reason is they succumb to pressure आ जाता है, ख़राब कर देते हैं। सो रिमेंबर दैट लास्ट 30 मिनट्स में प्रेशर बहुत रहता है, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इसलिए ये बीच के टाइम पे करो, जो आपके पास थोड़ा स्कोर बिल्ड हो गया, आपको पता है इतना तो हो गया, अब थोड़ा कुछ लेंदी क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा टाइम भी जाएगा तो कोई नहीं, हमने कुछ स्कोर बना लिया अपना, ओके। एंड देन इन द लास्ट 20-25 मिनट्स सॉल्व दिस। तो क्या होगा, आपने अगर बना लिया तो आपको एक कॉन्फिडेंस तो पहले से बिल्ड था, आप फटाफट वहाँ पे कर रहे होगे, ये हो जाएंगे, ये होने में डिफिकल्टी होगी, राइट। और फिर लास्ट में आपको 10 मिनट्स क्या करना है, आपको फ्लूक्स यानी कि तुक्का मारना है,
ठीक है, वो डेफिनेटली करना है, क्योंकि अगर आप छोड़ के आते हैं तो वो तो ज़ीरो हो गया वैसे ही, बट अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, isn't it? So this is the way that you should be attempting the paper using this method, and you will see that you are going to boost your score. अगर आप आज या कल में कोई एक मॉक दे रहे हैं तो उसमें ट्राई करके देखना, ऐसा आपका पहले के मॉक से बेटर स्कोर आ सकता है। और कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली कि डू नॉट टेक इट समथिंग टू योर ईगो। सो यू माइट बी वेरी गुड एट कैलकुलेशंस, यू माइट बी गुड इन क्वांट सॉल्विंग पजल्स, बट ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, विच इज़ ऑब्वियस एंड इट हैपन्स टू ऑल, इवन विद मी। आई फेस सर्टेन टाइम्स कि कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, दिमाग क्लिक नहीं कर रहा, वेरी मच पॉसिबल, राइट? सो जस्ट लेट गो ऑफ योर ईगो। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो जस्ट छोड़ दो, क्योंकि उसमें फंसे रह जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हेयर टाइम इज़ अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर, सो डू नॉट टेक एनीथिंग टू योर ईगो। आप सोच रहे हो मैं तो क्वांट पूरी करके गया था और यहाँ हो नहीं रहा, क्या हो रहा है? ठीक है, आप कोई सोचेगा मैं तो पजल्स करने में बहुत अच्छी थी, यहाँ मुझसे पजल्स नहीं बन पा रहे हैं। सो इट माइट बी पॉसिबल दैट द क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, ओके? सो जस्ट अवॉइड दोज थिंग्स एंड दैट विल हेल्प यू इन द score building during the paper, okay? Avoid the panic thing, don't doubt your abilities. See, the paper might turn out to be difficult, right? मैंने अभी 3 मॉक अटेम्प्ट की लाइव, आपने अगर देखे होंगे तो पहले 2 तो ईजी थे, एक डिफिकल्ट था, राइट? सो आई डिड नॉट पैनिक ड्यूरिंग दैट मॉक, आई न्यू कि इट इज़, मुझे लग रहा था कि ये डिफिकल्ट है, सो आई डिड नॉट डाउट माई सेल्फ कि अरे मैं खराब तो नहीं हो गया, राइट? आई नो दैट इट इज़ डिफिकल्ट, सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर ऑल। सो even if the examination turns out to be difficult, do not panic, right? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो डिफिकल्ट है, वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। एंड एट टाइम्स लाइक दिस हैपन्स, स्कोर्स वेरी, कभी कभी ठीक है वो बोलते 140 150 चाहिए, हो सकता है आपको कभी ज़्यादा भी चाहिए हो सकता है, कभी कम भी चाहिए हो सकता है। सो डू नॉट पैनिक एट एनी मोमेंट एंड डू नॉट डाउट योर सेल्फ। इफ़ यू हैव सिंसियरली प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, अगर प्रिपरेशन नहीं है तो बात अलग है, बट प्रिपरेशन की है तो डाउट नहीं रखना, हमेशा ये सोच के चलना कि आप सही कर रहे हो, पेपर खराब आया है मतलब पेपर डिफिकल्ट आया है, सबके लिए डिफिकल्ट है, यू विल स्टिल डू बेटर दैन अदर्स। कीप स्विचिंग बिटवीन सेक्शंस, किसी एक सेक्शंस पे अटके मत रहना, क्योंकि क्या होता है कि कुछ एक तो ठीक है इजी क्वेश्चंस हर सेक्शन में मिलेंगे, देन सेकेंडली दैट यू माइट गेट टायर्ड ऑफ सॉल्विंग वन थिंग एट अ लॉन्ग स्ट्रेच। लाइक इफ़ यू आर सॉल्विंग पजल्स 3 पजल्स आप एक साथ कर लोगे तो आप थक जाओगे, राइट? सो कीप स्विचिंग थिंग्स, लाइक पजल कर लिया, बीच में आरसी कर लिया, डीआई कर लिया, ऐसे स्विच करते रहोगे तो वो टायर्डनेस फील नहीं होगी, ओके? एंड इवेंचुअली लाइक एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, 10 मिनट्स आपको तुक्के के लिए बचा के रखना है। 10 से कम भी हो सकते हैं, 5। जो कम अटैम्प्ट करके आ रहा है उसको 10 मिनट्स लग सकते हैं तुक्का मारने में, जो ज़्यादा अटैम्प्ट करके आ रहा है उससे शायद 5-7 मिनट्स में भी ये काम हो जाए। बस ये ध्यान रखना कि बचा के रखना, ठीक है? मान लो आपके पास 10 मिनट्स बचे और आपको लग रहा है 5 क्वेश्चन आप जेन्युइनली कर सकते हो और तुक्के वाले हैं, सो पहले तुक्के मार लो, ठीक है? फिर उन 5 क्वेश्चन, फिर समय बच जाए तो जो बचे टाइम है 1-2 मिनट 3 मिनट जितने बचे उसमें कुछ अटैम्प्ट करके देख लो। सो जब 140 मिनट्स पे टाइमर पहुंच जाए तुक्के मारना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा हो गया आप 145 तक करते रह गए, तुक्के मारने का टाइम नहीं बचा। सो दिस मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है? थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, मे नॉट बी लाइक, ऐसा नहीं होगा 50 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, 10-15 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है डिपेंडिंग ऑन योर लक, okay? So it can be like 10 marks difference, 15 marks, 20 marks difference, but this does create a difference, okay? So ये मत भूलना, मकसद मत भूलना ये आपको कि 200 क्वेश्चंस पक्का अटेम्प्ट करके आना है। एंड लास्ट थिंग इज डू नॉट टारगेट एनी स्कोर ड्यूरिंग द पेपर, ठीक है? अगर आप टारगेट लेके चलते हो तो क्या होता है कि चीज़ें कहीं पे गड़बड़ा सकती हैं। पेपर डिफिकल्ट आ गया तो आप प्रेशर में आ जाओगे, पेपर इजी आ गया तो आप बहुत लेजी हो जाओगे, आप कहोगे अरे 140 चाहिए थे तो 140 करके आ गए हम, और पता चला पेपर में 160 भी करके आए लोग। सो डू नॉट टारगेट एनी स्कोर, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। लाइक समटाइम्स यू माइट बी सरप्राइज, आप सोच रहे हो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो पेपर ईजी हो सकता है, और एट द ऑन द अदर साइड यू माइट बी फेसिंग कि अरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, सो पेपर डिफिकल्ट भी हो सकता है, ओके? सो just try to give best, whatever you can pick easy, pick in the first 45-50 minutes,
then do some heavy questions like puzzles, DI, RCs etc. whichever you find doable, right? अब ऐसा हो सकता है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि आप पजल्स ही करो, राइट? कि आप क्या पता पजल्स अच्छा ना कर पाते हो, आप RCs कर सकते हो, ठीक है? यू माइट नॉट बी गुड एट क्वांट, सो यू माइट skip DI, okay? You might be good at quant and reasoning, so you might skip RCs. So accordingly, according to your strength, according to your interest, attempt the paper, and in the last few minutes do the moderate questions, and then eventually mark the flukes, and then if time permits you can do one or two more questions in the end. So I hope you found this thing valuable. Just try to implement. अगर आप आज या कल में कोई मॉक दे रहे हो तो प्लीज़ उसमें ट्राई करके देखना, डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और एग्जाम के दिन तो डेफिनेटली आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे. Okay, so the examination is going to be on 25th and 26th. So I will be taking up all the details of the examination, doing the analysis. 25th March का slot 1 12 PM पे analysis होगा. 12 slot 2 in this I will be appearing, and I will be doing the analysis from the center. And when I return home and collate some questions, I will be discussing the questions. So 26th को जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा ये एडवांटेज रहेगा, उन्हें कुछ क्वेश्चंस का आइडिया रहेगा. तो इफ़ द डिफ़िकल्टी लेवल रिमेन्स द सेम, तो हो सकता है कि आपको पता रहेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हो. एंड ओवरऑल कंपैरिजन वी विल डू व्हेन ऑल 4 स्लॉट्स गॉट ओवर, ठीक है? सो किस तरह से इसमें स्कोर्स जा सकते हैं लोगों के, वो हम डिस्कस करेंगे ऑन दिस, राइट? सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है? आई होप द वंस हु कुड नॉट डू वेल लास्ट ईयर एंड आर अटेम्प्टिंग दिस टाइम, wish you do better this time, and also the ones who are attempting for the first time, give your best shot in the examination, and just go and write the examination with free mind, ठीक है? ऐसा कोई प्रेशर लोड लेके जाओगे तो दिक्कत होती है. जस्ट चिल होके जाओ, एग्ज़ाम दो, और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी है तो डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिली होगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.